You will all get this recording afterwards. Okay, so I just want to let you people know that what this session is about, and what are the basic, prerequisites जिनकी बेस पर हमने इस सेशन को जो है वो आप लोगों के लिए अरेंज किया है. Actually, we got a lot of requests. We got multiple messages where there were so many people who were novice to all this and who had no idea how to start, this journey. If I say that CSS is a journey, that then that would not be an exaggeration. So before starting the session, let me just introduce myself to you all. वैसे तो my introduction is all visible on the screen, but still I must say that my name is Kashif Malik, and I've done PMS in the year 2020, and then afterwards I qualified CSS in the year 2022. And I am a master's in English literature and linguistics from the Punjab University, and I'm a gold medalist over there, batch 2016. And then afterwards I had MPhil in applied linguistics, and again I got distinction, alhamdulillah. So and I have a diverse experience of teaching as well through CSS platform, because this, I believe, is the only platform that provides you with the right guidance. And of course, when you are committed enough to your work, then definitely there must be a platform that suits your criteria and that suits your nature as well. So I must appreciate a CSS platform for having me, and for providing me with the opportunity to give you all sessions, and Pakistan Affairs and Pressy और इसके अलावा फाउंडेशन कोर्सेज, बेसिकली जो इंग्लिश रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, आई एम all there for CSS platform services. Okay, जी. So let me just start this session first with the very basic term that CSS, what exactly it is, because there might be so many people in the meeting right now who must be well aware of all these terminologies. उनको बहुत आइडिया होगा, और मे बी एक आधी अटेम्प्ट जो है वो आप लोग दे भी चुके हों, बट देयर आर सो मेनी पीपल हियर, सो यू हैव टू पुट अप विद मी इफ आई गिव बेसिक guidelines. So I just want to maintain the criteria of this session. Okay, so एंड लास्टली वी विल बी हैविंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन एज वेल. तो उस पर फिर आप लोगों के जितने भी क्वेरीज होंगे हम उनको एड्रेस करेंगे. आई हैव रिसेंटली रिमूव्ड अ पर्सन, his name was I guess Rashid from the meeting right now, and please आप लोग ये lines लगाएंगे तो definitely I will have to remove you as well, so please be conscious of it. अच्छा जी, CSS Central Superior Services, and what exactly is the core, मतलब ये कि जब हम CSS के एग्जाम की बात करते हैं तो ये एग्जाम बेसिकली है क्या, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द कोर ऑफ इट, और किस तरीके से इसकी तैयारी या इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, और आपका स्टडी प्लान किस तरह से होना चाहिए फ्रॉम दिस टू एडवांस लेवल. आई मीन सजेस्टिंग यू द बुक्स रिकमेंडेशंस जो मैंने अपने जर्नी में यूज की है. डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग द टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज आफ्टरवर्ड्स, बट first let's just have an overview that what exactly is the core of it. देखें, हमारे पुराने वक्तों में अगर हम बात करें तो पुराने वक्तों में हमने अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे इसके लिए मुकाबले का इम्तिहान का लफ्ज इस्तेमाल होते हुए सुना. सो दैट वुड नॉट बी एन एग्जैजरेशन. आपका मुकाबला है, ठीक है. अब मुकाबला किस नेचर का है, उसमें भी डिफरेंस आता है कॉन्टेक्सचुअल. मुकाबला आपका आपके इर्द गिर्द के लोगों से है, मुकाबला उन लोगों से है जिनके साथ आप एग्जाम दे रहे हैं, एंड लास्टली जिसको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडर करती हूँ, वो मुकाबला आपका खुद के साथ है, दैट whether you are capable enough to carve your name among those who qualify this exam or not. तो सबसे पहला सवाल जब आप तैयारी करने लगते हैं या तैयारी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो दैट विल बी द क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि आपका मुकाबला है किससे. whether you are capable enough to cope up with all the challenges that the people will be facing while preparing for the CSS exam, or you just consider yourself feeble enough
कि आप इतना इसके साथ कोप अप नहीं कर सकते. द पर्पस बिहाइंड टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स इज दैट कि दिस इज नॉट अ डिग्री बेस्ड एग्जाम एंड यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर एंड यू आर देन सिटिंग इन द पेपर. ऐसा नहीं होता. You need a lot of insight, you need a lot of knowledge, you need so many things that are actually required for this exam. ठीक है. Now comes the question of time duration कि अब आपने जब खुद को prepare कर लिया that I am going for दिस एग्जाम और मैं इस एग्जाम में मुझे जाना है, तो आप जो है उसके बाद क्या सोचेंगे कि व्हाट विल बी द टाइम ड्यूरेशन दैट विल बी रिक्वायर्ड मुझे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. नाउ देयर आर डाइवर्स opinions that exist over this particular point, that there are some people, I mean you will be seeing so many civil servants who must be of the view कि in different interviews and all this type of stuff, they say I qualified it in when I just prepared for 3 months. ठीक है. कोई होगा जो आपको कहेगा मुझे 6 महीने का जो है वो दौरानिया दरकार था एंड देन आई वाज सिटिंग इन द एग्जाम और उसके बाद मैंने क्वालिफाई कर लिया. एंड देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आपको सुनने को मिलेंगे. बट आई मस्ट से कि आप एक एक ह्यूमन बीइंग के लिए या एक इंसान जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से भी आ रहा है या बहुत हाई बैकग्राउंड से भी है फॉर इंस्टेंस, उसके लिए 3 महीने इज नॉट एन एनफ पीरियड टू प्रिपेयर फॉर सीएसएस. ठीक है. एंड देन सिटिंग इन द एग्जाम इज अनदर गेम. ठीक है. टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको अगर आप तैयार करते हैं खुद को तो 1 साल तो मैक्सिमम आपको चाहिए कि आप उसके अंदर चीजों की नो हाउ, चीजों की अंडरस्टैंडिंग, चीजों के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए. अब चीजों की ग्रिप की अगर हम बात करें जो आपके स्टडी प्लान में भी आ जाती है चीज, तो whenever we have a session that is basically related to the basic guidelines for CSS examination and how to start your preparation, I mean एक kick start आपको चाहिए होता है in order to prepare for it. तो मैं चंद चीजें, if you have notebooks you can even write it over there, तो चंद चीजें ऐसी हैं जो आपको लाजमी लाजमी स्टार्टिंग में अपने माइंड में रखनी होगी. उसमें सबसे पहली चीज जो मैं रिकमेंड करती हूँ दैट इज कि आपको वर्ल्ड वार्स के बारे में आइडिया होना चाहिए. व्हाट एग्जैक्टली इज वर्ल्ड वार 1 और व्हाट एग्जैक्टली इज वर्ल्ड वार 2, कोल्ड वार क्या है, और उसके बाद जो आपको बायपोलैरिटी एंड देन यूनिपोलैरिटी एंड देन मल्टीपोलैरिटी, ये 3 चीजों का आइडिया और इन 2 जंगों का 3 जंगों का आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए. when you are actually going to start your preparation, I am talking about prior period के इस तैयारी को शुरू करने से पहले आपके पास किन चीजों का इल्म होना जरूरी है. उसमें द वेरी फर्स्ट थिंग इज वर्ल्ड वार्स, देन कोल्ड वार एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपको एक बायपोलर मल्टी यूनिपोलर एंड देन मल्टीपोलर वर्ल्ड का आइडिया होना चाहिए. ये बेसिकली आपका स्टार्ट है. उसके बाद जिस चीज का आपको इल्म होना चाहिए दैट आर द सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहले वी हैव कम्युनिज्म. आपको एक बेसिक आइडिया, आपको एक आई मस्ट से कि एक यू मस्ट हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट व्हाट कम्युनिज्म इज, then you must have a knowledge about what capitalism is, then what socialism is. I mean basic ideas आपको सारे होने चाहिए that what exactly are these systems, because when we talk about IMF, when we talk about World Bank, when we talk about other economic related systems and other systems of the countries as well, we need these things, we need these systems, and unless or until you are well aware of what these systems are, तब तक आपको ये आइडिया नहीं अच्छे से हो सकता. ये हम वो बात कर रहे हैं जो इस एग्जाम में बैठने से पहले, या सॉरी इस एग्जाम को तैयारी करने से पहले आपके पास क्या इल्म होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद जिस चीज का इल्म आपके पास होना चाहिए इसको तैयार करने से पहले या जाने से पहले, तो आप को ये पता होना चाहिए कि आपकी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो बेसिकली क्या है.
अब उस हिस्ट्री में आप बिल्कुल निटिग्रिटीज में मत जाइए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हमारा सिस्टम किस तरह से चलता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम किस तरह से चलता है, पार्लियामेंट कैसी है, हमारी नेशनल असेंबली क्या है। ठीक है, नेशनल असेंबली के बाद आपकी जो है सेनेट क्या है, और अरकान किस तरह से मुंतखब होते हैं, क्या सेटअप है हमारा, बलूचिस्तान का क्या शेयर है, एनएफसी अवार्ड क्या होता है, फिर पंजाब का कैसे, पंजाब की सीट्स किस तरह से एलोकेट होती हैं, हमारे यहाँ पर इलेक्शन किस तरह से होता है, हमारे यहाँ पर सियासी निजाम किस तरह से चलता है, सेनेट के अरकान किस तरह से मुंतखब होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, एंड लास्टली जो एक चेरी ऑन द टॉप है, व्हाट आई मस्ट रिकमेंड इज दैट कि आपको पाकिस्तान के आइन का अंदाजा होना चाहिए। आई एम वेरी मच सिंपल इन दिस सेशन। आई एम नॉट यूजिंग इंग्लिश मीडियम because I have these instructions to be simple and as simple as I can be. So मेरा अंदाजा है कि might be आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ओके आई एम बिट स्लो। अच्छा, उसके बाद जो आखिरी चीज मैंने आपको बताई दैट इज पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल कि आप इसको जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस को पढ़ें। ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बिकॉज आपकी जैसे ही पार्टीशन होती है आफ्टरवर्ड्स आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर एब्रोगेशन, इस्कंदर मिर्जा का आना, and then Ghulam Muhammad, whatever the cases were going on at that time, doctrine of necessity आ जाता है। These are very very long processes. What I am saying is that कि आप जिस टाइम पर तैयारी शुरू करेंगे तो आपकी जो तैयारी है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया होना चाहिए। नाउ व्हाट इज बेसिक आइडिया? बेसिक आइडिया इज बेसिकली कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो क्या है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, जिसमें आर्टिकल 8 to 28 है हमारा, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, आर्टिकल 8 to 28, एक सेकेंड रुकिएगा जी प्लीज। ओके, सो आर्टिकल 8 to 28 आपके बेसिक जो है फंडामेंटल राइट्स उनसे लिंक्ड है। अब आर्टिकल 8 to 28 में आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी की बात होती है, राइट टू लाइफ की बात होती है। इवन अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं आपको, बिकॉज सिंस दिस इज नॉट अवर पाकिस्तान अफेयर्स क्लास, तो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर दैट आर्टिकल 10, फॉर इंस्टेंस हम आर्टिकल 10 की बात कर लें, या फॉर इंस्टेंस लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आर्टिकल 19। आई मीन these are the articles, article 8 to 28, which are actually the fundamental which actually provide fundamental rights to the people of Pakistan. You, if you do not have a lawyer, if you are in some sort of case, then it is entirely prerogative of the government to provide you with the lawyer in order to deal all the affairs that are going on against you. So this is how state provides you with fundamental things. ठीक हो क्या? So these are the things that you have to prepare before preparing for this exam. अब आप मुझे अपनी फहम से ये बात बताइए, can you imagine that this is possible within 3 months, that you are preparing these things and along with that you are preparing for good 12 subjects? No, not at all. And lastly, I'll be paying much emphasis on English, that how to prepare English, or basically that is, you can say, a thorn in the neck, कि इंग्लिश जो है दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम जो कि लोगों को फेस करनी पड़ती है, नो मैटर इफ यू हैव इवन डिग्री जो है अगर आपकी अंग्रेजी में है तब भी यू हैव टू फेस, बिकॉज दिस एग्जाम होल्ड्स डिफरेंट क्राइटेरिया व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर? सो ये जी अभी तक की हमारी जो है डिस्कशन इसके ऊपर रही कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एग्जाम, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। मैंने आपको 1 साल का अरसा
मैक्सिमम जो है उस पर जाकर बताया कि आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, अगर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, आप एक बहुत ही जो है वो आप पढ़ने वाले बच्चे रहे हो, आप इस तरीके से जो है चलते रहे हो कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स, यू आर वेल अवेयर ऑफ कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, you are very well aware of all these things, then definitely it would, then तब भी it would take you I mean 6 to 8 months आपको अपनी तैयारी करने के लिए, ठीक है। So this is what honestly you know I just want to make it clear कि आपको कितना अरसा जो है वो इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम इसके, आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया दैट यस आई एम केपेबल इनफ टू गो फॉर दिस मुकाबले का इम्तिहान, माय मुकाबला इज नॉट जस्ट विद द पीपल who will be sitting with me in the examination hall, my mukabla is also with myself, this is you know अपने खुद के साथ मेरा ये एक मुकाबला है। एंड लास्टली व्हाट is very very pathetic, what is very very disturbing is mukabla with the social setup. Mukabla with the social setup is something that you will find hard to fight with, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका खुद से एक मुकाबला है दैट विल ऑल्सो बी बेयरेबल, जो आपका उनके साथ मुकाबला है जिनके साथ आपको इस एग्जाम में बैठना है दैट इज ऑल्सो बेयरेबल, बिकॉज आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी एफर्ट डालोगे, यू विल डेफिनेटली बी एसिंग द रेस। बट द पॉइंट इज कि जो मुकाबला आपका इस सोशल सेटअप के साथ है दैट इज वेरी वेरी पथेटिक थिंग, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट, देयर विल बी लॉट ऑफ नेगेटिविटी, एंड इफ यू आर अ वुमेन and if you are listening to me, then definitely you are living in a patriarchal setup, and definitely you will be seeing a lot of hurdles in order to climb up, you know, the socio-economic ladder of the country, ठीक है। So this is what I say कि आपका इन तीन चीजों पर खुद के साथ मुकाबला बहुत जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद अब आपने जब खुद को प्रिपेयर कर लिया, नाउ देयर आर two things that are in front of you. The very first thing is your compulsory subjects, and then comes your optional subjects. We will be talking about optional subjects turn by turn, but first we will be decoding your compulsory subjects के अगर आप लोग बिल्कुल नए हो इस चीज में and you people have no idea about it, then let's just talk about your compulsory subjects. आपके compulsory subjects कौन कौन से हैं और किस किस तरीके से इनकी तैयारी जो है वो स्टार्ट की जाती है और क्या क्या आपके compulsory subjects हैं, इनके ऊपर अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। I request you all not to mark lines on the slides because आपको ये recorded lecture मिलना है and it would definitely be giving a very or leaving a very negative impression of yourself because आपका नाम जो है वो साथ में visible होता है यहाँ पर। Anyway, अच्छा जी, अब हम लोग जिस बारे में बात करेंगे that is your compulsory subjects, ठीक है जी। compulsory subjects में the very first one is your इंग्लिश एसे, ठीक है जी। इंग्लिश एसे मैं यहाँ पर आपको जो है वो मार्क कर दूं कि दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट वन, ठीक है, और आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। एंड सेकेंडली बल्कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो है वो आपका चैलेंज है, ठीक है जी, ये आपका चैलेंजिंग पार्ट है, ये जो दो चीजें हैं। देन कम्स योर जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी आपका जो होता है दैट इज बेसिकली अ 60-40 गेम, ठीक है, इसको मैं 60-40 गेम बोलूंगी बिकॉज इसमें आपका 60 मार्क्स का जो है वो जनरल साइंस होता है एंड 40 मार्क्स का आपका एबिलिटी होता है। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट आई लिसन, हर दूसरे एस्पायरेंट से मुझे सुनने को मिलती है, and if I talk about myself then I also had to face this hurdle because there are so many people who are actually not good when it comes to mathematics, ठीक है। तो आपने इस चीज पर परेशान नहीं होना। एबिलिटी इज समथिंग, अगर आप इसको थोड़ा वेटेज भी देते हो तो यू आर केपेबल इनफ, ठीक है, इसको अच्छा स्कोर लेने के लिए, प्रोवाइडेड कि आप जनरल साइंस को इग्नोर नहीं करेंगे, किसी भी लूप होल को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी एक भी टॉपिक जो है उसको चॉइस में नहीं छोड़ेंगे और अपने हर टॉपिक के साथ मस्ट मस्ट डायग्राम्स को प्रिपेयर करेंगे। तो डेफिनेटली आप 50
प्लस मार्क्स में जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। देन कम्स अवर करंट अफेयर्स। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स इज समथिंग एल्स कि जो है आपको क्या करना होगा कि करंट अफेयर्स में आपको स्टार्टिंग से चलना होगा। आप करंट अफेयर्स डेफिनेटली आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ोगे। आपको हाँ, एक बात जो मैं आई एम रियली वेरी सॉरी, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कहा था कि प्री आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, उसमें इकोनॉमिक जार्गन्स आपको पता होने चाहिए। आपको इकोनॉमी की नो हाउ होना बहुत जरूरी है। इतनी नो हाउ होना जरूरी है कि आप जिस टाइम पर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि अगर आप इन्फ्लेशन का वर्ड देख रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट का वर्ड देख रहे हैं, जीटीपी देख रहे हैं, जीएनआई देख रहे हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आए। ठीक है, क्यों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, वैल्यू एडिशन क्या होती है, दीज आर द थिंग्स दैट आर commonly used when you will be reading newspapers। ठीक है। एंड along with that, अगर आपने ये चीजें कोल्ड वार जो है, इसके अलावा वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1, और इसके अलावा करंट पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री, ये चीजें अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी है ना, तो आप जिस टाइम पर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस। आपको एक क्लियर विजिबल डिफरेंस अपने देखने को मिलेगा। एंड अलोंग विद न्यूज़पेपर्स आई डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आपको डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर जाना है। अब डिफरेंट मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो आई ऑलवेज से, जिस टाइम पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम कंटेंट अच्छा या हम अच्छा कैसे लिखें, एस्से में इतना अच्छा स्कोर कैसे लें, तो आई ऑलवेज से अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लिख सकोगे। ठीक है। अ हेल्दी बॉडी owns a healthy mind, right? Exact is the case with your writing, I mean English writing। जितना क्वालिटी मटेरियल आप पढ़ेंगे उतना क्वालिटी मटेरियल आपका ब्रेन, आपके रिफ्लेक्सेस पुश करेंगे आपको प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसमें आप सिर्फ कन्वेंशनल करंट अफेयर मटेरियल पर मत जाइए। मैं हमेशा ये कहती हूं कि अगर आपको स्टैंड आउट करना है रेस्ट ऑफ द क्राउड से, जिस जो 40-45 हजार बच्चा एग्जाम में बैठता है, उससे अलग होना है आपको। उन 200-250 लोगों में अपना नाम लाना है जो पाकिस्तान की क्रीम कंसीडर किए जाते हैं। तो आपको फिर उतनी ही एफर्ट भी पुट करनी पड़ेगी। आप अपनी ये सारी चीजें नोट कीजिए कि अगर आप बाकी 40-45 हजार लोगों की तरह ही डॉन पढ़कर एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनका मिमिक्ड मटेरियल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपका इमिटेटेड मटेरियल है। एग्जामिनर विल नॉट बी सीइंग समथिंग डिफरेंट इन योर पेपर। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू फाइंड डिफरेंट सोर्सेज। अब उन सोर्सेज में हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं, उन सोर्सेज में वी हैव फॉरेन मैगजीन्स। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप फॉरेन अफेयर्स मैगजीन जो है उसको पढ़ें। 2 मंथ्स का वो एक मैगजीन आता है। ठीक है। 2 मंथ्स का जब वो एक मैगजीन आता है तो आप उसको जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ न्यू टर्मिनोलॉजीज। आपकी वोकेबलरी उससे बूस्ट हो जाएगी। I am again requesting you all not to mark on these slides. Otherwise, मैं अभी तक 3 से 4 लोगों को रिमूव कर चुकी हूँ। मुझे नाम जब भी विजिबल होते हैं तो आई हैव टू रिमूव देम। एनीवे, सो द पॉइंट इज के जो है आई वाज टॉकिंग, इससे डिस्ट्रैक्शन इस तरह भी हो रही है कि व्हाट आई वांट टू से वो क्लियरली इम्पार्ट नहीं हो पा रहा। एनीवे, अच्छा जी, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉरेन अफेयर्स मैगजीन एंड दैट विल नॉट बी जस्ट हेल्पिंग यू आउट इन गैदरिंग रेलेवेंट मटेरियल। इसके अलावा आपका ये जो है इसमें भी हेल्प करेगा कि आप इसके थ्रू ओके। सो इसके थ्रू आप फिर क्या करेंगे कि आप इसमें अपना वेट प्लीज। ओके। सो इसके थ्रू आप क्या होगा कि आपको अपना जो है वो कैबलरी भी आपकी बूस्ट हो जाएगी। जब आपकी वो कैबलरी बूस्ट होगी तो डेफिनेटली आपका जो जितना भी आपका इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो उससे क्या होगा कि आपका जो है
जितना भी आपका ये सारा प्रोसेस है, इंग्लिश एसे जो है वो आपका, और फिर इसके अलावा आपकी जितनी भी जो है वो वोकैबुलरी रिलेटेड कंटेंट है, 20 मार्क्स का आपका सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, एंड बिलीव यू मी, इफ यू आर केपेबल इनफ टू स्कोर 50 प्लस इन योर प्रेसी एंड 50 इन योर एसे, यू आर इन द गेम। ठीक है, आई मस्ट से कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनका इतना उनका रोल होता है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप उनमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप गेम में हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी हार्ड टू स्कोर हाई इन योर कंपल्सरीज। ठीक है जी। उसके बाद यस सर आई हैव, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो फॉर अच्छा, एक बात और आप सब लोगों को कि आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द लिस्ट, आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, जो जो लोग भी इस टाइम पर मीटिंग में हैं, आप लोगों को ग्रुप्स जहां जहां से भी आप लोग आए हैं वहां से शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी ये जो कंटेंट है या बुक्स की रिकमेंडेड बुक्स की जो लिस्ट है, दैट विल बी डेफिनेटली अवेलेबल टू यू ऑल। ठीक है जी। उसके बाद we are talking about, I'll be addressing, Kamran, all the answers, all the queries, sorry, all the questions, all the queries, and just give me few minutes, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के ही comments होंगे, आप लोगों की messages होंगे, and I'll be addressing each one of you। अच्छा जी, then current affairs is a long long debate since we are here for a very short time, तो अभी हम इसकी उतनी नेटिग्रिटीज में नहीं जा पा रहे, बट मैंने आपको एक क्रक्स दे दिया है that instead of going into, you know, instead of just focusing on the conventional material, you must focus on the material that is rarely available, and by rarely available I am very sure that you people are intelligent enough to understand what I am saying। Clear? उसके बाद now we have Pakistan affairs। ठीक है जी, पाकिस्तान अफेयर्स की बात अगर हम करें तो सिंस पाकिस्तान अफेयर्स का हमारा अभी 13th बैच जो है वो थ्रू सीएसएस प्लेटफॉर्म चल रहा है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन का एक सेशन इन लोगों का होता है, एंड आई एम टीचिंग जनरल साइंस, प्रेसी एंड पाकिस्तान अफेयर्स ओवर देयर, एंड पाकिस्तान अफेयर्स का हमारा बैच 13 इस टाइम पर चल रहा है, एंड दैट इज इफ देयर इज एनी पर्सन फ्रॉम दैट बैच, सो दैट पर्सन विल डेफिनेटली बी एबल टू टेल यू कि वो सेशन हमारा किस लेवल पर चल रहा है और वो किस कॉन्टेक्स्ट में हम पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। हम 3 पार्ट्स में पाकिस्तान अफेयर्स को डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आई टीच प्री पार्टीशन, एंड देन उसके बाद थैंक यू फरियाल, यस यू आर माय स्टूडेंट ओवर देयर, थैंक यू। उसके बाद जी yes sir, Bob is also over there, thank you so much, thank you so much जी। अच्छा जी, पाकिस्तान अफेयर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें प्री पार्टीशन में कराती हूँ, प्री पार्टीशन के बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, और उसी में पाकिस्तान की पोस्ट पार्टीशन का पॉलिटिकल सेटअप भी साथ में हम लोग कवर कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद लास्ट चीज जो हम लोग करते हैं वो हमारी होती है करंट, उसमें मैं सीपैक, फॉरेन पॉलिसी, कश्मीर, एंड बिलीव यू मी, आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग माई सेल्फ, बट द थिंग इज कि हम उस कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर को नहीं पढ़ते जो 500-600 वाली किताब में होता है। हम एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, हमारा जो लेंस है दैट इज कोर एनालिटिकल इन नेचर, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आप उसको कन्वेंशनल बातें, वो जगलर शगलर वेन वाली ना बता रहे हो, आप उसको एक सेन और प्लॉजिबल सॉल्यूशन की तरफ लेकर जा रहे हो, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर एग्जामिनर डिमांड्स। क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद देन वी हैव इस्लामिक स्टडीज। ठीक है जी, इस्लामिक स्टडीज के बाद इस्लामिक स्टडीज की अगर हम बात करें, सो इसके साथ आपका कंपैरेटिव रिलीजन भी आ जाता है, रिलीजियस स्टडीज भी आ जाती हैं इफ यू आर नॉन मुस्लिम। तो इस्लामिक स्टडीज अगेन इट इज अ वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट, और मेरा ये मानना है कि आपका इंग्लिश एसे और प्रेसी के बाद सबसे ज्यादा जो फेलियर रेशो है वो हमें इस्लामिक स्टडीज में देखने को मिलता है। यू कैन कॉन्टेक्ट सीएसएस प्लेटफॉर्म फॉर द upcoming sessions for all the details, they will definitely be guiding you। ठीक है जी। You will launch compulsory subject session when join late, you can contact css platform for that, I am just here to guide you, and I have basically cleared in the very beginning कि मैं कौन कौन से subjects जो है वो यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, and along with that I we offer optional subjects as well,
ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बसीर आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ बिल्कुल अभी, बस मैं थोड़ा सा ये साथ साथ कंप्लीट कर लूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस, यूएस हिस्ट्री, दीज आर द टू सब्जेक्ट्स दैट आई एम टीचिंग थ्रू सीएसएस प्लेटफॉर्म। और डेफिनेटली जब वो सेशंस अनाउंस होंगे तो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन इट। वी वर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक स्टडीज, और इस्लामिक स्टडीज अगेन इट इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट, और इसको प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी भी यही है। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, बट आई वांट टू शेयर विद यू, मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों को बहुत हेल्प हो जाए। इस्लामिक स्टडीज जब मैंने तैयार की थी तो उन दिनों रमजान का टाइम चल रहा था, एंड बहुत से चैनल्स के ऊपर जो है डेली का प्रोग्राम आ रहा होता है। तो एआरवाई के ऊपर एक प्रोग्राम आता था डेली का, डेली अफ्तारी से पहले का टाइम होता था, उस पे दोपहर में वो प्रोग्राम होता था, और वो डेली एक टॉपिक रखते थे। किसी दिन हज का टॉपिक होता था, किसी दिन रोजा का टॉपिक होता था, किसी दिन नमाज का होता था, ज़कात का होता था, सीरत तैयबा का होता था। तो व्हाट आई यूज टू डू कि मैं कॉपी पेंसिल लेकर वो प्रोग्राम सुनती थी, और मैं वहां से अपना मटेरियल निकाल लेती थी। ठीक है। सो वहां से आपको ऐसे ऐसे जो ऑब्वियसली अलामा होंगे, वो आपको ऐसे ऐसे अहादीस, ऐसे ऐसे हवाले, ऐसे ऐसे अल्फाज से आशना करा रहे होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि अच्छा, ये चीज तो मैंने बुक में नहीं पढ़ी। सो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू स्टैंड आउट, और आपको एक नया और एक बहुत जबरदस्त मटेरियल जो है वो वहां से मिल जाएगा। ठीक है। शान रमजान आई थिंक इस तरह का कोई नाम था, मिलने जुले नाम होते हैं। यू कैन इवन सर्च ऑन यूट्यूब। अब जैसे अगर किसी दिन मिस हो गया तो आप उसको यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हो। ठीक है। सो ये एक बहुत ही एक हिडन सा टिप है, जो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतना कॉमन होगा लोगों में इस्लामिक स्टडीज प्रिपेयर करने का, बट दिस इज हाउ आई प्रिपेयर्ड। मेरे बहुत से टॉपिक्स इससे कवर हो गए थे। अच्छा जी, उसके बाद अब आई एम सॉरी टू से आई हैव नो आइडिया अबाउट कंपैरेटिव रिलीजन्स, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो उसमें फिर हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा, काइंडली आप लोग अपना अपना ओपिनियन ना दें, बिकॉज यू नो कि आप लोग जो बात कर रहे हैं मैं उसको बिल्कुल वैल्यू करती हूँ, लेकिन द थिंग इज के बाइस्ड नहीं होइए, कहीं भी एक पर्सन को ना सुनिए। आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर स्टार, ऑफ कोर्स उन जैसा कोई नहीं हो सकता, बट अगेन द थिंग इज के देयर आर डिफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू ओपिनियन। तो दोनों तरफ की बात को हमेशा गौर से सुना कीजिए। अच्छा जी, हमारा ये क्लियर होने के बाद कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके 6 होते हैं, और इन 6 सब्जेक्ट्स को आपने प्रिपेयर करना होता है। देयर इज नो चॉइस, आपको इनको लाजमी लाजमी प्रिपेयर करना होता है। ठीक है। उसके बाद जो है हमें क्या करना है कि नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इजहार, बिल्कुल आई एम गोइंग टूवर्ड्स दैट, मैं आपकी उसी बात पर जाने वाली हूँ जो आप लोग पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट कैसा है और ये सब्जेक्ट कैसा है, जिसमें सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो हमारे पास ग्रुप्स बने होते हैं। आप एक ग्रुप से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, यू कैन नॉट चूज मोर देन वन सब्जेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 1, अच्छा, अब आपको 6 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं आपके ऑप्शनल्स में से। इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 1, तो इसमें आपके पास अकाउंटिंग आ जाती है। ठीक है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट अगेन दिस इज, आई मस्ट से कि ये आपका प्रोफेशनल उसमें आ जाता है, कि अगर आप प्रोफेशनली चल रहे हो तो यू कैन गो फॉर ऑडिट्स एंड सॉरी अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। देन वी हैव इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये भी अगेन आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस, ये भी अगेन आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। बट नाउ व्हाई आई एम मच एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड प्रोफेशनल, लेट मी जस्ट क्लियर यू आफ्टरवर्ड्स। नाउ कम्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपके दोनों ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर एन इंजीनियर, इफ यू आर अ टीचर, इफ यू आर अ लॉयर, you can go for these two options. ठीक है। But again, since this is a demand that you just have to choose one subject from one group, then you have to choose either political science or international relations. अब टसल आ जाता है, डिबेट आ जाती है दैट व्हाट इज एग्जैक्टली स्कोरिंग, कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है। तो उस डिबेट को मैं थोड़ा सा आज आपको क्लियर कर दूं
कि ये जो ऊपर के सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप रख तो सकते हो, बट दीज आर नॉट, मैं अगर ये कहूं कि रिलायबल, तो दैट वर्ड वुड नॉट बी एन एग्जैजरेशन, ठीक है? दीज थ्री सब्जेक्ट्स, द वेरी फर्स्ट थ्री वंस, are not reliable ones. Either you have idea, clear idea about it, or you have no idea about it. अब अगर मैं आपसे कोर अकाउंटेंसी की कोई टर्मिनोलॉजी पेपर में पूछकर आपको 20 नंबर का क्वेश्चन दे दूं और आपने अपनी डिग्री में ही उसको ना पढ़ा हो, तो यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दैट, ठीक है? सो ईदर यू नो और यू डू नॉट नो, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, याद तो आपको आएगा या नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स भी ऐसे ही है, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप में आपको कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज इन दोनों पार्ट्स में से एग्जाम में आ गई और आपको वो नहीं आती है, तो काम सारा वहीं पर खराब हो जाएगा। अगर मैं लास्ट टू सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो आप कहीं ना कहीं मोल्ड करके अपना ओपिनियन बना सकते हो, ठीक है? अब हम जो बहुत क्वेश्चन मुझे सुनने को मिलता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस के साथ जाऊं या मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जाऊं। लेट मी जस्ट क्लियर यू दिस थिंग फर्स्ट। देखो, पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ बैड सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट पॉलिटिकल साइंस उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही प्रिपेयर करना चाहते हैं। इट इज एन ओवरलैपिंग सब्जेक्ट, बट इट विल बी हेल्पिंग यू आउट इन योर पाकिस्तान अफेयर्स. And comparatively, if I talk about international relations, then international relations is going to help you out in your essay, in your current affairs, in your Pakistan affairs, in, of course, international relations as well, and in your history paper, if you are opting US history, European history, whatever history you are going to opt, that is going to help you over there. So, वेटेज कहाँ है इंटरनेशनल रिलेशंस पर, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस will help you out to develop your critical thinking. Political science will not be doing this thing, which exactly is the demand of this exam. तो मेरा वोट और मेरा मानना यह है कि आपको पॉलिटिकल साइंस की बजाय इंटरनेशनल रिलेशंस चूज करना चाहिए। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑफ द व्यू कि इसमें स्कोर कम आता है, स्कोर नहीं आता। सो आई माई सेल्फ इज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। आई गॉट 149 इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और मेरा एक बेहतरीन जो है ये एरिया ऑफ कंसर्न था, सिंस आई वाज मच prone towards international politics and global politics. So this subject appealed me, but later on, I tried to find out the reasons that why I should go for international relations. ठीक है? तो international relations के लिए जो है मेरा मानना ये है कि ये सब्जेक्ट आपको, इसने मुझे हेल्प जहां जहां किया, मैं फेयरली और ऑनेस्टली यहां पर आपको वो सब बताना चाहती हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर हेल्प करता है। तो ये एसए में हेल्प करता है। मेरा एसए ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इसी पर बेस्ड था, और अगर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट ही ना किया होता, तो बिलीव यू मी, देयर वाज नो एज सच ऑप्शन दैट आई कुड अटेम्प्ट इन दैट पेपर, ठीक है, एसए पेपर, ऑनेस्टली। क्योंकि आप कितने भी महान हैं, आपको एक या दो से ज्यादा थीम्स नहीं आते वहां पर जब आप एसए में जाते हो। हार्डली कोई बहुत रस्तू होगा जो कहेगा मुझे 10 के 10 एसेज आते थे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस आपको यहाँ हेल्प करेगा, ठीक हो गया? सो ये चीज आपको बहुत ज्यादा जहन में रखनी है कि इधर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर आप क्रैम करना चाहते हो, क्रैम्ड मटेरियल, आपको क्रैमिंग पसंद है, यू कैन गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। बट इफ यू वांट टू गो फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल अप्रेजल्स, जो कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बनाएंगे लेटर ऑन, तो यू शुड गो फॉर, और आई मस्ट से कि यू मस्ट गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ फिर जाना चाहिए। सो ये हमारा ग्रुप 1 है। इसमें मेरी रिकमेंडेशंस आपको इधर पॉलिटिकल साइंस है या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, जो कि हमारा ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है जी? ग्रुप नंबर 2 में अगेन यू हैव फिजिक्स। मुझे बहुत स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, इंडिविजुअल मैसेजेस मुझे बहुत रिसीव होते हैं कि मैम मेरी डिग्री पॉलिटिकल साइंस में है, मैं पॉलिटिकल साइंस रख लूं, सॉरी फिजिक्स में है, मैं फिजिक्स रख लूं। तो ये बात याद रखें कि अगेन वही बात है कि आपको या तो फिजिक्स आती है या नहीं आती है। आप वहां पर अपने पास से
कोई भी बात नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री, आप देखिए, आप अपनी डिग्री को ना देखें, आप ये देखें कि आपने ये एग्जाम निकालना है, आपको क्वालिफाई करना है, आपने अपनी डिग्री को नहीं देखना। नो वन इज गोइंग टू जज यू कि भाई आपकी डिग्री केमिस्ट्री में है तो आपने ऑप्शनल केमिस्ट्री क्यों नहीं रखा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिलीव यू मी। आई हैड लिटरेचर बैकग्राउंड, मेरा लिटरेचर का बैकग्राउंड था, और मैंने लिटरेचर को एज एन ऑप्शनल चूज ही नहीं किया। हालांकि मैं कर सकती थी और इसके ऊपर ऐसे भी आता है, बट आई हैड दिस आइडिया कि इसमें स्कोर ही नहीं आना। जब स्कोर नहीं आना तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। डिस्पाइट हैविंग गोल्ड मेडल, आई नेवर चोज यू नो जो है लिटरेचर। सेम इज द केस है यार। इसी तरह अप्लाइड मैथ्स है, ऑफ कोर्स आपको ये क्वेश्चंस अगर इस तरह के कोई वहां आ जाते हैं जो आपको नहीं आते तो आप कैसे करेंगे। तो ये जो कोर आपके साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, यू शुड नॉट गो फॉर देम। मेरा रिकमेंडेशन आपको यही होगा। अगेन स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, ये बहुत, जियोलॉजी तो खैर रखते ही बहुत कम लोग हैं, ये तो बिल्कुल ही वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा उसमें चला जाता है। देन वी हैव बिजनेस एड, अच्छा सब्जेक्ट है, लोग रखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, बहुत अच्छा है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, इसका इतना स्कोप नहीं है। देन टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये आपका ओवरलैप करता है सोशियोलॉजी के साथ। अगर आप सोशियोलॉजी रखते हैं तो ये आपको वहां पर डेफिनेटली हेल्प करेगा। क्लियर हो गया जी। उसके बाद देन हमारे पास आता है ग्रुप 4। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप, और यहाँ से लोग जरूर ऑप्ट करते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री एक रखना जो है वो बहुत सही रह जाता है। ठीक हो गया। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स दैट। ठीक है जी। एग्जैक्टली आप लोग क्वेश्चंस बिल्कुल सेम और ना छोटे छोटे करेंगे तो मुझसे जो है एड्रेस करना आसान होगा। इतने इतने लंबे मैसेजेस, सिंस टाइम इज वेरी शॉर्ट, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लंबे लंबे क्वेरीज को पढ़ना। अच्छा, उसके बाद ये आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, और हिस्ट्री में इंडो पाक हिस्ट्री का एक बहुत ट्रेंड है। लोग बहुत पूछते हैं इंडो पाक हिस्ट्री का, बट आई नेवर रिकमेंड इट। मैं इसको रिकमेंड क्यों नहीं करती हूँ? मैं इसको इसलिए रिकमेंड नहीं करती, मेरे पास रीजंस हैं। मेरे पास हर चीज का एक वैलिड रीजन है, बट आई एम गिविंग कि क्यों इसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए, या व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप इसको ऑप्ट करते हो तो। इंडो पाक हिस्ट्री बहुत लॉन्ग है, इंतहाई लॉन्ग है। दो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर पाकिस्तान अफेयर्स, बट नॉट दैट मच कि आप इंडो पाक हिस्ट्री में बहुत डीप डिटेल्स में आपको जाना होता है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ डेट्स। ठीक है, इतनी आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, इतनी हिस्ट्री पढ़नी होगी कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे और आपको नहीं समझ में आएगा, इतनी ज्यादा डेट्स हैं। ठीक है। अगेन इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, वन ऑफ आवर बैचमेट्स हैड दिस, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है आगे जाके, क्योंकि यू नो दैट अवर इस्लामिक हिस्ट्री इज रिप्लीट विद अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, अ लॉट ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ स्टफ जो कि एक्सेप्टेबल एट टाइम्स एग्जामिनर के लिए नहीं होता। यू डू नॉट नो दैट योर एग्जामिनर बिलोंग्स टू शिया स्कूल ऑफ थॉट, और ही बिलोंग्स टू बरेलवी, और हनफी, और वट एवर द स्कूल्स ऑफ थॉट्स आर। आपको नहीं पता कि आपका एग्जामिनर किससे बिलोंग करता है, तो आपको सेफ साइड पर प्ले करना है। डोंट गो फॉर इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। आई हाईली यू नो मैं क्या वर्ड यूज करूं, आई नेवर रिकमेंड इट, आई मस्ट से। ठीक है जी। उसके बाद ब्रिटिश हिस्ट्री है, दैट इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, बहुत लॉन्ग है। देन यूरोपियन हिस्ट्री आ जाती है, दैट इज समहाउ एक्सेप्टेबल। But when it comes to US history, then that is the shortest one, the most interesting one, and it is going to help you out or overlap जब आप प्रिपेयर करोगे इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट करते हो तो आपका मेजर चंक यहां से कवर होगा। यूएस हिस्ट्री इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर एसे, since you know that US is the sole superpower, although not, but again अभी तक तो वही चीज एग्जिस्ट करती है। और हमारा करंट अफेयर्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान का सेटअप, whatever you are doing, there is definitely a discussion of the United States of America as well. So I must say कि please go for that। ठीक है, उसके साथ आप जाओ, और यूएस हिस्ट्री जो है आप उसको जरूर ऑप्ट करो। अब एक और बहुत क्वेश्चन सुनने को मुझे मिलता है कि यूएस हिस्ट्री में मेरा स्कोर बहुत कम आया, यूएस हिस्ट्री जो है वो टारगेट हो रही है, ये सब्जेक्ट टारगेट हो रहा है। तो बिलीव यू मी कि जिस ईयर में मैंने एग्जाम दिया था उस ईयर में कोई भी, मतलब हार्डली लोग पास हुए थे यूएस हिस्ट्री वाले। आप एक बात कॉमनली समझिए
कि टारगेट होने पर कोई भी सब्जेक्ट टारगेट हो जाएगा। आपको ये बात नहीं पता कि इस साल ब्रिटिश हिस्ट्री टारगेट होनी है या यूएस हिस्ट्री होनी है या यूरोपियन हिस्ट्री होनी है, ठीक है ना? तो ट्रेंड ब्रेक करने के लिए उसको किया जाता है, लेकिन द थिंग इज कि आप अपनी तैयारी इतनी बेहतरीन करें कि आपसे वो कहीं से भी सवाल पूछे, आपको टारगेट होने का डर ही ना हो, ठीक है ना? 2022 में पाकिस्तान अफेयर्स टारगेट हो गया, तो क्या अब आप ऑप्शनल सॉरी कंपलसरी सब्जेक्ट रखेंगे ही नहीं? कैसे कैसे चलेंगे आप? सो टारगेट वाली बात को काइंडली अंडरस्टैंड ना किया कीजिए। आप अपनी तैयारी पर इतना फोकस कीजिए कि आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको टारगेट होने का कहीं पर डर ना हो। ठीक है जी। ओके सर, आई विल। सो आई मस्ट से कि यूएस हिस्ट्री इज अ वेरी 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 प्रोडक्टिव सब्जेक्ट। ये आपको बहुत जगहों पर जो है वो हेल्प करेगा, ठीक हो गया? तो ये चीज जो है आपको जहन में रखनी है। एक सेकेंड, let me just remove you as well, because this session is being arranged for you all, for the benefit of you all. Might be यहाँ से आप कुछ ऐसा लर्न करके जाएं जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना। तो इसलिए आपको कॉपरेशन जो है वो भी तो जहन में रखनी चाहिए ना, कि आप कॉपरेट उन लोगों के साथ भी करें जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है? सो वेट प्लीज। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि हम जो है बात कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री वाले पोर्शन की, और हिस्ट्री में मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया है कि कौन सा जो हिस्ट्री है उसको उसमें आपको जाना चाहिए, ठीक है? आपको जो है नहीं, एज लिमिट शिमिट कोई ऐसी जो है खुराफात में ना पड़िए। बिल्कुल इस चीज के ऊपर फोकस ना कीजिए, अपनी तैयारी को 100% रखें। आपकी तैयारी, आपकी ये चीजें बेस्ट ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स कुतब, टूवर्ड्स ये क्रिमिनोलॉजी और इन साइट्स पर अभी हम जा रहे हैं, ठीक हो गया? आई हैव रिमूव्ड, थैंक यू सर, थैंक यू। आई हैवंट सीन एक्चुअली, जब आपने मुझे बताया है थोड़ा लेट हो गया। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। अच्छा, यूरोपियन हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, आप इसको भी देख सकते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज व्हेन यू आर डूइंग बीएस, दे ऑफर दिस सब्जेक्ट एज अ माइनर सब्जेक्ट। तो मुझे काफी लोग मैसेजेस करते हैं इंडिविजुअली पूछने के लिए यूरोपियन हिस्ट्री का, कि उन्होंने एज अ माइनर सब्जेक्ट इसको पढ़ा है। सो यू मस्ट गो फॉर दैट, अगर आपको इसकी नो हाउ है तो, ठीक है, आप इसके साथ जा सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद ग्रुप 5 के ऊपर आते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो बात की जाती है, ठीक है? आप लोग पूछ रहे हैं चीजों का, मैं एंड पर आप लोगों को ना, इफ आई एम अलाउड, तो मैं आपको नंबर यहाँ पर शेयर कर दूंगी, जहां पर आप लोग कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो इंग्लिश रिलेटेड और ये सारी, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद then we have group 5, that is your gender studies, environmental sciences, agriculture and forestry, botany, zoology, English literature, Urdu literature. लास्ट टू तो आप लोग बिल्कुल काट दें, बिकॉज दीज आर नॉट स्कोरिंग। लिटरेचर में तो वैसे ही सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको जो है डिग्री में मार्क्स नहीं आते, और फर्स्ट डिवीजन के साथ आप कभी लिटरेचर की डिग्री क्लियर नहीं कर पाते। सेकेंड डिवीजन में यू आर एलिजिबल फॉर द गोल्ड मेडल। और लिटरेचर इज अ वेरी वेरी टफ सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मार्क्स, ठीक है? सो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री अगेन वेरी वेरी लो स्कोरिंग सब्जेक्ट। अच्छा, लास्टली ना, एंड पर आई विल बी टेलिंग यू कि क्या क्राइटेरिया आपने डिफाइन करना है अपना ऑप्शनल चूज करने के लिए। मैं जो आपको 3 से 4 चीजें बताऊंगी, उसके बाद आप आराम से बैठ के अपना ऑप्शनल खुद डिसाइड कर सकते हो कि मैंने किन सब्जेक्ट्स के साथ जाना है, ठीक है? नो वन इज गोइंग टू फीड यू, कोई आपको ये क्लियरली नहीं बता पाएगा कि आपके हक में कौन सा सब्जेक्ट बेहतर जाएगा, अनलेस और अनटिल आपको खुद आइडिया इस बात का नहीं है कि मेरे लिए कौन सी चीज ठीक रहेगी। ये मैं आपको अपनी डीप इनसाइट से बता रही हूँ, इट्स
एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 8 years, ये मेरा 8 साल का तजर्बा है जिस पर बेस्ड मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ. व्हेन आई वाज novice to this game and I had no idea about the subjects and all this stuff, and a lot of understanding, a lot of reading, a lot of stuff जिससे मैं गुजरी हूँ, and I am talking my experience with you all. अच्छा, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री अगेन वेरी लो. बॉटनी वही लोग रखते हैं, जोलॉजी जिनकी डिग्री है, बट बहुत बड़ी हमाकत होती है, ये नहीं रखना चाहिए आपको. इस ग्रुप के अंदर मेजॉरिटी पीपल गो फॉर ईदर एनवायरमेंटल साइंसेज और जेंडर स्टडीज. ये बातें जो मैं आपको हर ग्रुप के अंदर बताती हूँ ना, 2 या 3 सब्जेक्ट्स, आपको मैं एंड पर एक टास्क दूंगी एंड यू विल सी क्या है मैंने आपको जो बात बोली वो क्या है. देखो, जेंडर स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंसेस की अगर हम इसकी गेम की बात करें तो बहुत से लोग या तो एनवायरमेंटल साइंसेस के साथ जाना चाहते हैं या फिर जाना चाहते हैं आपके जेंडर स्टडीज के साथ. अब अगेन बात ये आती है कि जेंडर स्टडीज अगर आप रखते हो तो आपकी कई चीजें जो है वो सॉल्व होती हैं. ठीक है, उसमें सबसे पहले जो चीज आपकी आती है दैट इज योर एसे. हर साल देयर इज अ मस्ट. ठीक है, एक ऐसे आपका मस्ट होगा जो आपका जेंडर स्टडीज पर आएगा ही आएगा. ठीक है, तो अगर आपने जेंडर स्टडीज ऑप्ट किया है तो डेफिनेटली यू आर इन द गेम. आपका एक थीम एसे का तैयार हो गया, इसके बाद आपको एसे के अंदर एडिशनल चीजें आप तैयार कर रहे हो. ठीक है, और अगर आप बहुत अच्छा जेंडर स्टडीज तैयार करते हो तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने जेंडर स्टडीज रखा और उन्होंने ऐसे भी जेंडर पर अटेम्प्ट किया और वो क्वालिफाई कर गए और अभी सर्विस में मौजूद हैं. देन एनवायरमेंटल साइंसेज आ जाता है. अब हमें इसके अगर कॉन्स की बात करें तो क्या है कि जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट आपका इतना सिंपल सब्जेक्ट है कि आप 2 हफ्ते में इस सब्जेक्ट को बहुत आराम से तैयार कर लेते हो अगर आप फोकस्ड होकर अपनी तैयारी कर रहे हो. एनवायरमेंटल साइंसेज हैज अ वेरी 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 लेंथी सिलेबस और आप घूम जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि अब मैं इस सब्जेक्ट को मैंने ऑप्ट तो कर लिया, मैं इसको फिनिश इसका सिलेबस कैसे करूं. तो ये याद रखें कि एनवायरमेंटल साइंसेस कंपैरिजन में अगर मैं देखूं जेंडर स्टडीज के, ऐसे क्लाइमेट के ऊपर भी आता है बट दैट इज नॉट अ फोर श्योर थिंग. हम फोर श्योर थिंग्स की अगर बात करें तो जेंडर स्टडी इज समथिंग दैट इज फोर श्योर व्हेन इट कम्स टू एसे. तो आपका एक एसे का थीम जो है वो बहुत अच्छा तैयार होने के चांसेस होते हैं अगर आप जेंडर स्टडीज ऑप्ट करते हैं. और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको जरूर ऑप्ट करें और ये बहुत ज्यादा आपके हक में बेहतरीन जाएगा, आई मस्ट से. एंड गारंटी जो है वो मेरी है. ठीक है, उसके बाद और हाँ एक बात और, जेंडर स्टडीज का जो मटेरियल है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ ना रिकमेंडेड बुक्स शेयर कर दूंगी सिंस हमारे पास टाइम कम है, वरना मैं आपको बहुत कुछ बताना चाह रही हूँ कि आप हर चीज को कैसे तैयार करेंगे. जेंडर स्टडीज के लिए अगेन मैं यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट्स के लिंक्स रिकमेंड करती हूँ. आई नेवर रिकमेंड कि आप एक 500-600 वाली किताब खरीदें और उससे पढ़कर आप एग्जाम में जाकर बैठ जाएं, फिर आपको स्कोर भी वैसा ही मिलता है जितनी आपकी एफर्ट होती है. तो जितना एफर्ट आप जो है पुट करोगे उतना ही आउटकम आपको उसका बेहतरीन देखने को मिलेगा. ग्रुप 6 की बात कर लेते हैं जी. इसमें लॉ से रिलेटेड चीजें आती हैं. इसमें आपके पास सिंपल लॉ है विच इज वेरी लेंथी एंड वेरी डिफिकल्ट. अब जिन लोगों की लॉ की डिग्री भी होती है वो भी लॉ रखते हुए 2 बार सोचते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है, अगेन इसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें हैं. इंटरनेशनल लॉ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड इट विल हेल्प यू आउट एट सो मेनी टाइम्स और सो मेनी पॉइंट्स पर आपको ये हेल्प करेगा, जिसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है, आपका एसए आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है, इवन योर पाकिस्तान अफेयर्स, और ये सब जगहों पर आपको इंटरनेशनल लॉ हेल्प करेगा. देन मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, ये सब्जेक्ट मैंने पर्सनली खुद भी पढ़ा हुआ है बट मेरा खुद का क्रिमिनोलॉजी था वैसे, लेकिन ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है. ये आपकी कंपैरेटिव स्टडी है 2 स्कूल्स ऑफ थॉट में, जिसमें आपका शिया स्कूल ऑफ थॉट है और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है. तो इफ यू आर लिटिल बिट ऑर्थोडॉक्स व्हेन इट कम्स टू रिलीजन देन यू शुड नॉट गो फॉर दिस सब्जेक्ट. इसके अंदर आपकी जो है डिफरेंट डिफरेंट फैमिली रिलेटेड फैमिली लॉ आ जाता है, जैसे डिवोर्स है, मेंटेनेंस है, मैरिज है, और इन सब चीजों में
शिया स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं। सो मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। स्टार्टिंग में इसके आपके वो आ जाते हैं, ठीक है, जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ठीक है, जिसमें हनफी, मालिकी जो है वो सारे आ जाते हैं, ठीक है, और फिर शिया साइड से भी जितने भी। अच्छा, उसके बाद मर्केंटाइल लॉ है, पीपल विद बिजनेस डिग्री दे गो फॉर मर्केंटाइल लॉ, देन क्रिमिनोलॉजी आ जाता है, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी इज वेरी बेस्ट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, बहुत कम तैयार करके भी बहुत अच्छा स्कोर इसमें आ जाता है। इसका एक ड्रॉबैक छोटा सा सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि आपको जो है सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा इसका लगेगा, लेकिन अगेन ये आपको स्कोर बहुत अच्छा दे जाएगा, ठीक है, कंपैरेटिवली अगर आप दूसरी चीजों के साथ कर रहे हो, ठीक है जी। सो ये चीज जो है वो आपको जहन में रखनी होगी जब आप क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करोगे, कि सिलेबस इसका थोड़ा सा लेंथी है, और मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इसको रख रहे हो तो प्लीज इसकी तैयारी अर्ली स्टार्ट कर दो, साथ साथ थोड़ी थोड़ी इसकी तैयारी जो है वो आप लेकर चलते चलो, ठीक है जी। उसके बाद भी है फिलोसफी, ठीक है जी। फिलोसफी अगेन दिस इज समथिंग जो बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन सुना है कि ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सिंस आई डू नॉट टीच इट, इसका मुझे और इतना मुझे इसका आइडिया भी नहीं है, सो आई विल गो ऑनेस्टली, और मुझे इसका इतना कोई पता नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है वो लोग ऑप्ट करते हैं, बट आई हैव नो आइडिया कि ये कितना हेल्पफुल रहेगी, ठीक हो गया जी। इंटरनेशनल लॉ का रिपीट करें, डिड यू रिकमेंड? यस, आई रिकमेंड इंटरनेशनल लॉ, बिल्कुल रिकमेंड करती हूँ मैं। यहाँ पे इस ग्रुप में आप इंटरनेशनल लॉ के साथ चले जाएं या क्रिमिनोलॉजी के साथ चले जाएं, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स आपके बड़े टू दी पॉइंट और बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अब ना एक और मैं चीज क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पर। अच्छा, ये लैंग्वेज वाली बात कर लें, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पर चलते हैं जी। What should I opt? I had background of food science. देखो, again background of food science, you will hardly see any subject that is related to that, ठीक है। So again you have to start from the scratch, ठीक है। ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ाएं लेकिन मटेरियल जहन में नहीं बैठता, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे एंड पर, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस प्रिपेयर कैसे करना है आपको? इंटरनेशनल रिलेशंस अगेन जो है एक तो हमारा कोर्स भी ऑफर होता है, सीएसएस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है, अनाउंस होगा तो यू कैन ज्वाइन दैट। उसमें मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मेरा हर टॉपिक एक डिफरेंट इंटरनेशनल ऑथर से, ऑथर की बुक से था। अगर मैं डिप्लोमेसी की बात करूं, स्ट्रेटेजिक कल्चर की बात करूं, मैं पावर की बात करूं, मैं कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी की बात करूं, तो मेरा हर सब्जेक्ट, सॉरी, हर टॉपिक एक डिफरेंट ऑथर की बुक से था, ठीक है, और वो सारे फॉरेन ऑथर्स थे। आप एक बात याद रखें, दिस सब्जेक्ट हैज अ नेम, इंटरनेशनल रिलेशंस। So if it is international relations, then don't go for national authors. So I hope you are getting my point, what I'm saying. अच्छा जी, now we have language में again, इस पोर्शन में वैसे लोग लैंग्वेज रखते हैं, लेकिन इसके साथ सोशियोलॉजी भी रिकमेंडेड होती है, एंड मेजोरिटी पीपल गो फॉर साइकोलॉजी एज वेल, बट अगेन आई से कि अगर आपकी साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है, अगर साइकोलॉजी में आपको इंटरेस्ट नहीं है, डोंट गो फॉर दैट। हाँ, अगर आप पीएमएस में साइकोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट, 100 मार्क्स की आपकी ये प्रिपेयर हो जाएगी। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत डिबेट देखने को मिलता है। आई मस्ट रिकमेंड कि आप सोशियोलॉजी के साथ ही जाइए। और लास्टली हमारे पास लैंग्वेजेस आती हैं, और मैं, अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपको जो है रिकमेंड करूं या इसमें से बताऊं कि आपको क्या रखना चाहिए, ठीक है, तो आप ये याद रखें कि लैंग्वेज जो आपको मार्क्स देगी ना, वो आपको कोई सब्जेक्ट और नहीं देगा, ठीक है। आई कुड चूज पश्तो एंड आई कुड चूज पंजाबी, बोथ, आई कैन, बट I chose Punjabi and my score was 83. Or when I chose Punjabi, when I opted Punjabi, I literally had no idea how to write Punjabi. So Sir Akhtar Jafri late, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, मैंने उनसे क्लासेस ली एंड मैंने उनसे पढ़ी पंजाबी। जो पंजाबी उन्होंने मुझे पढ़ाई, that was amazing.
ठीक है, और आई वॉज एबल टू सिक्योर 83 मार्क्स इन पंजाबी। तो अगर आप लैंग्वेज रखना चाहते हो तो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद ये सारी डिस्कशन होने के बाद नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि वो जो मुकाबला है आपका खुद से, वो जो मुकाबला है आपका सोसाइटी से, वो जो मुकाबला है आपका उन लोगों से जो आपके साथ उस एग्जाम में बैठेंगे, उसमें आपको अलग से खुद को मनवाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, दैट इज स्मार्ट वर्क। बी थॉटफुल एंड स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। रैंडम चीजें नहीं पढ़िए, चीज को ऐसे ही पकड़ के पढ़ना शुरू कर देना। और सीएसएस की तैयारी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को आता है, दैट इज कि आप पढ़ने कुछ और बैठते हो, पढ़ कुछ और रहे होते हो। किसी वेबसाइट पर जाकर खोलते कुछ और हो, वो खुलते 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 कहीं का कहीं मटेरियल निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, और आपका वो सारा दिन वेस्ट हो जाता है। सो प्लीज इस चीज को याद रखें कि आपको किस पर फोकस करना है, आपका दिन का एजेंडा क्या होगा, उस पर आपको बेहतरीन तरीके से काम करना होगा, ताकि रात को जिस टाइम आप अपना एनालिसिस करें सोने से पहले कि आज मैंने क्या प्रोडक्टिव पढ़ा, तो उसमें आप बिल्कुल क्लियर हो अपने माइंड में। आपको किसी किस्म का कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया। ठीक है, उसके बाद पिक अ गोल दैट इज मेजरेबल। अब आप कहें अच्छा भाई आज ना सारे दिन में मैंने जेंडर स्टडीज पूरी तैयार करनी है, नो, यू कांट डू दिस। तो जो मेजरेबल गोल है ना, वहां तक रहें, अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लें कि मुझे इतना, इतनी तैयारी जो है वो इतने टाइम में करनी होगी। वेट प्लीज। देन वी हैव कि आपको ये सोचना है कि अचीवेबल मेरे लिए क्या है। अगेन मेजरेबल गोल अचीवेबल एक ही बात हुई, ओवरलैप करते हैं दोनों। देन आपको रियलिस्टिक होना होगा कि मैं रियलिस्टिकली सोचूं कि क्या मुझसे ये काम इतना जो मैंने वो किया है हो जाएगा। अ, साथ साथ आप लोगों की बातें भी मुझे सुननी चाहिए। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीएसएस एंड पीएमएस? अच्छा, प्लीज इसके ऊपर वी विल बी हैविंग अनदर, वी कैन हैव अनदर सेशन, क्योंकि आज आई वांटेड टू डू दिस। ठीक है, तो ये चीज जो है वो मुझे प्लीज वेट कीजिएगा। ओके, सो ये चीज जो है वो आपको जहन में रखनी होगी कि आपने जो रियलिस्टिक गोल सेट किए हैं उनको कैसे आपने अचीव करना है। ठीक है, उसके बाद यूएस हिस्ट्री एंड टाउन प्लानिंग, विच वन इज बेटर? यूएस हिस्ट्री इज बेटर। ठीक है, आपने, हाँ, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एंड पर कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी जिनसे आप अपना ऑप्शनल खुद चूज कर सकते हो। उसमें सबसे पहली चीज, एक बात याद रखें, एक एग्जामिनर रिपोर्ट आती है एफपीएससी की। ठीक है, एफपीएससी की एक एग्जामिनर रिपोर्ट आती है, उसको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, आप स्कोरिंग ट्रेंड्स देख लेते हैं, तो आपको आइडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये आप पढ़ लोगे तो आपको खुद ही स्कोरिंग ट्रेंड्स का आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको कैसे चलना है। ठीक है, एडीएस डिग्री, आई हैव नो आइडिया अबाउट एडीएस हसनैन। ठीक है जी। um, और आप लोग जेंटली कमेंट करो ताकि मैं सबके कर सकूं। ठीक है, कैन आई डू सीएसएस विद जॉब? एवरीवन डज। ठीक है, अहमद यू कैन। इंग्लिश लिटरेचर इन सीएसएस, इंग्लिश लिटरेचर आई नेवर रिकमेंड। ठीक है, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती मैं। वो वर्ड्स हाथ पे नहीं आते जैसे डॉन ऑथर से लिखते हैं। आपने उनको प्रैक्टिस जब तक अपने रिटर्न में नहीं किया, आपने एक रजिस्टर बना लिया, उस रजिस्टर पर आप लिखते जा रहे हो, अच्छा फलाने वर्ड का ये मीनिंग है, अच्छा इसका ये मतलब है, अच्छा इसका ये मतलब है। नो, अनलेस और अनटिल यू आर यूजिंग इट, आप जब तक यूज नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। आप जब तक उसको अपनी लैंग्वेज में यूज नहीं करना शुरू करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और वो वर्ड आपको कभी भी याद नहीं हो सकता। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट एग्जामिनर रिपोर्ट। एग्जामिनर रिपोर्ट के बाद आप टॉपर्स का डीएमसी उठाकर देख लें।
या फिर कोई 20 डीएमसीज निकाल लें नेट से पिछले 2 साल के, आप खुद देखेंगे जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वो मिलेंगे। आपको कोई बॉटनी नजर नहीं आएगा, आपको कहीं पर जोलॉजी नजर नहीं आएगा, इंग्लिश लिटरेचर नजर नहीं आएगा। यू यू आई आई क्लेम माय वर्ड्स, ठीक है, मैं अपने वर्ड्स को क्लेम कर रही हूं, और आप देखेंगे एंड यू विल सी दैट। ठीक है, और ये एक टिप है जिसके थ्रू आप, और हाँ, एक और स्ट्रेटजी जो मैं आपको लास्टली बताऊंगी, दैट इज के याद रखें कि आपका जो एग्जाम है, या ये जो सीएसएस का एग्जाम है, इसमें आपने सब्जेक्ट चूज करते हुए जो सबसे प्राइम बात, व्हाट शुड बी इन योर माइंड, कि क्या मैंने जो सब्जेक्ट चूज किया, is it going to overlap with the rest of the subjects? I mean 3 or 4 subjects। तो मैंने आपको जितना भी बताया उसमें मैंने आपको जो सब्जेक्ट रिकमेंडेशन में दिया है, वो सब्जेक्ट आपका ओवरलैप करता है, एसए पे करता है, पाकिस्तान अफेयर्स पर करता है, करंट अफेयर्स पर करता है। आप बॉटनी रख लेते हो, आप जोलॉजी रख लेते हो, कैन यू रिलेटेड विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स? नो, यू कैन नॉट। तो प्लीज सब्जेक्ट वो चूज कीजिए जो आपका ओवरलैप करता है, और ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। ये आपको अंदाजा उस दिन होगा जिस दिन आप सीएसएस के एग्जाम में बैठेंगे और आपके पास सिर्फ 2 घंटे होंगे अगला सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए। क्लियर हो गया जी? उसके बाद मोटिवेट करना है आपको, रोज मोटिवेट करना है खुद को। ठीक है, अपना एक एंड टाइम आपने रखना है, अपना एक प्रॉपर आपने शेड्यूल बनाना है। मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे आप टाइम टेबल बना दें, मैं आपकी रूटीन नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि आप किस टाइम सोकर उठते हैं, किस टाइम जागते हैं, आप क्या एक्टिविटीज करते हैं, कि आप जॉब करते हैं, नहीं करते। कोई किसी का टाइम टेबल नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन मैं आपको ये चंद चीजें जरूर बता सकती हूँ what must be the part of your timetable. Number one is vocabulary। vocabulary आपके टाइम टेबल रोज की डेली रूटीन का पार्ट होने चाहिए। ठीक है, देखिए आप लोग अब मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह का पूछ रहे हैं, मैं आपको बहुत क्लियरली पहले बता चुकी हूँ। अगर आप लोग सेशन अभी ज्वाइन आपने किया है तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब मैं वो क्वेश्चन सिर्फ एड्रेस कर रही हूँ जो लोग स्टार्टिंग से इस रिकॉर्डिंग इस सेशन का पार्ट है, और आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर आप लोग थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में है तो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, हाँ, किसी ने यहाँ पर पूछा है 8 आवर्स इनफ। देखो, हमें ये नहीं पता कि आप, मुझे ये नहीं पता कि आपकी एक चीज याद करने की कैपेसिटी 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है, 4 घंटा है। आपको खुद पता है, अगर आप नॉन प्रोडक्टिव 5 घंटे बैठकर मक्खियां उड़ा रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि मैंने एक डॉन का वर्ड याद कर लिया आज, तो दैट इज समथिंग वेरी बैड। और अगर आपके मुकाबले में एक इंसान ने 1 घंटे में अपना सारा काम कर लिया और दैट पर्सन इज आउट फॉर वॉक और जिम और समथिंग लाइक दैट, तो वो इंसान आपसे बेहतर है। तो आई होप सो कि मेरे इस पॉइंट के बाद आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपका वैल्यू जो है, अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाना इज मैंडेटरी थिंग। ठीक है, इफ समवन हैज 1.5 years to prepare, yes you can leave everything। ठीक है, now I am in on social media, I use Instagram, I use Snapchat, I use all the social apps। ठीक है, but व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग मेरे सारे अकाउंट डिलीट थे, मैंने कभी सोशल मीडिया यूज ही नहीं किया था उस तरह से। एंड आई एम नॉट पर्सनली दैट पर्सन जो एग्जैजरेट करके बताए कि मैं तो बस 22 घंटे पढ़ रही थी, मैं 24-24 घंटे पढ़ रही थी, मुझे तो याद ही नहीं था कि मैंने खाना भी खाना है। दीज आर द थिंग्स विच वी यूजली है। तो हमें हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने आने वाले जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं एग्जाम्स की और ये सब चीजों में जा रहे हैं, हमें उनको रियलिटी चेक बताना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होता, एवरी पर्सन इज नॉर्मल जो तैयारी करता है। ठीक है, सो आपको इजी होना चाहिए उस चीज के बारे में। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन मैक्सिमम मेरा 18 आवर्स तक गया हुआ है, बट आई नेवर से, मैं उस चीज को इलेबोरेट ही नहीं करती कभी। हर पर्सन की कैपेसिटी डिफरेंट है। ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में फर्स्ट कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करें? हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है। देखें, अगर मैं आपको तैयारी स्टार्ट करने का, अगर जिन लोगों ने करनी है, आप एक ऑप्शनल उठाएं, एक कंपल्सरी उठाएं, और वो ऑप्शनल उठाएं जो आपके उस कंपल्सरी से ओवरलैप करता है। ठीक है, इस तरीके से तैयारी करें। ठीक है,
इतने तेजी में आ रहे हैं मैसेजेस, मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा। चले मैं एक मिनट स्लाइड नेक्स्ट कर लूं। आप लोगों में से मेजोरिटी लोग एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, दैट व्हाई इंग्लिश इज सो मच important. Please, instead of making connections, instead of getting into friendships in this session, please listen to the points that I want to emphasize on. क्योंकि ये सेशन हम ऑब्वियसली डेली 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 नहीं ले पाएंगे और हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा मैनेज करना इन चीजों को, ठीक है। इसलिए आई मस्ट से कि आप इन बातों को गौर से सुने। Why English is so important? In the beginning, I told you that I receive a lot of problems and queries that students actually uh, ask me. कि हम we are facing a lot of difficulty while preparing English. So why English is so much important and how to cope up with English phobia? I always say that you have to face the fear instead of running. आपको उससे भागने की बजाय उस खौफ को, जो खौफ का एक बुत है, उसको तोड़ना होगा, ठीक है। एंड what exactly is going to help you out to overcome this English phobia? That is your, एक सेकेंड जी रुकिएगा प्लीज। And what exactly is going to help you out in order to overcome this English phobia? That is your writing practice. अब राइटिंग प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो राइटिंग प्रैक्टिस क्या है? यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कैसे? प्लीज डू नॉट राइट फुल फ्लैजेड लॉन्ग लॉन्ग एसेज इन द बिगिनिंग, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में लॉन्ग लॉन्ग एसेज नहीं लिखने, ठीक है। क्यों नहीं लिखने? एक पूरा ऐसे गलत लिखकर 100 में से 3 या 4 नंबर लेने से बेहतर है कि आप बेबी स्टेप्स लेकर चलो। इंग्लिश चूंकि मेरा सब्जेक्ट है, इंग्लिश मेरा हमेशा से एरिया ऑफ कंसर्न रहा है, आगे इंशाल्लाह पीएचडी इंग्लिश है। द थिंग इज कि जो चीज मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड बता सकती हूँ, मैं आपको बाकी चीजें उस तरह से प्रॉपर उस तरह से गाइड नहीं करूंगी। द थिंग इज कि जो मैं इंग्लिश के बारे में आपको इस टाइम बता रही हूँ, प्लीज इस चीज को नोट कीजिएगा। हमेशा बेबी स्टेप्स लेकर चलिए। इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करेंगे? बेबी स्टेप्स के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। बेबी स्टेप्स क्या होंगे? डू नॉट राइट फुल फ्लैजेड ऐसे इन द बिगिनिंग। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो शौक में आके कहते हैं मैम आई वांट टू गेट माय एसे इवैल्यूएटेड, ठीक है, तो आप प्लीज मुझे जो है मेरा ये ऐसे चेक कर लें, ठीक है। मैं कहती हूँ हाँ एवैल्यूएशन अवेलेबल हैं, सेशन चल रहा है, आप आ जाओ। आपने कितने ऐसेज हैं आपके? वो कहते हैं एक ऐसे अभी लिखा है, पहला ऐसे लिखा है और मैं बहुत वो हूँ, इंटरेस्टेड फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि मैं आपसे इससे इवैल्यूएट करा लूं। अब देखो, वो ऐसे हम इवैल्यूएट करेंगे, उसमें आपके 6 नंबर आ गए, 8 नंबर आ गए, 9 आ गए, आपका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, ठीक है। अब हमने उस राइटिंग बैरियर को तोड़ना कैसे है, हमने इस मसले को हल कैसे करना है, ठीक है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। स्टार्ट फ्रॉम वन पेजर, वन पेजर, देन 1.5 पेजर, 1.5 पेजर, 2 पेजर, 2 पेजर, 3 पेजर, 3 पेजर, 4 पेजर। मैं पर्सनली जिस टाइम पर खुद तैयारी मैंने स्टार्ट की, तो आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट और मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कोई खुद पे कि मेरी तो इंग्लिश जो है ना वो फेल नहीं हो सकती। बट लेटर ऑन आई केम टू नो कि ये चीज ऐसे नहीं है। द इंग्लिश दैट वी वर इनटू दैट वाज समथिंग एल्स, और जो डिमांड इस एग्जाम की है दैट इज समथिंग एल्स। इट नीड्स a proper writing with a proper thought, with a proper material, with a proper content along with your इंग्लिश का जो आपका कंटेंट है। कैसे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया आपका, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो ये ब्लेंड है। अब 1 पेजर 4 पेजर, ये जो मैंने आपको कहानी बताई है, दैट इज कि आप पैराफ्रेजिंग से स्टार्ट लें, पैराग्राफ राइटिंग से आप अपने जो राइटिंग है इंग्लिश उसका स्टार्ट लें। कभी भी ऐसे को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करें, ठीक है। तो ये याद रखें,
ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग करें, पैराग्राफ उसको इवेल्युएट कराना स्टार्ट करें, पैराफ्रेजिंग करें। आपकी आपके बड़े ऐसे को 6 नंबर मिलने से बेहतर है कि आप एक 4 पेजों का मिनी पैराग्राफ 250 to 300 वर्ड्स का लिखें, उसको आप अपना इवेल्युएट करवाएं, ताकि आपका एक सीव होकर चीज सामने आ जाए, एक फिल्टर होकर सामने आ जाए, दैट यस यू नीड टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। ये तो वोकैबुलरी का मसला है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, यू नीड टू, अच्छा आपने एक मर्ज को आइडेंटिफाई करना है, तो आपका वो जो मर्ज है उसको अगर आपको पूरी बॉडी में आइडेंटिफाई करना है, मुश्किल होगी आइडेंटिफाई करने में, या सिर्फ बाजू में आइडेंटिफाई करना है तो मुश्किल होगी? बताइए प्लीज। क्या आप अगर सेम थॉट रखते हैं, आपको अगर सेनली पता है चीजों का, तो आपको इस चीज का आइडिया है बहुत अच्छे से कि भाई एक मर्ज जो मुझे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा इजी ये रहेगा कि अगर मुझे सिंपली उसको किसी एक बॉडी पार्ट में आइडेंटिफाई करना है, तो जितना छोटा बॉडी पार्ट है उतना आपके लिए उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, कंपैरेटिवली कि आप एक लंबा एस्से लिख रहे हैं और उसमें आपके जो एस्से इवेल्युएट भी कर रहा है उसको भी नहीं पता चल रहा कि आपको कहाँ कहाँ मिस्टेक फील हो रहा है। ठीक है। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग कीजिए, उसको इवेल्युएट करवाएं। आई एम नॉट ऑफरिंग यू कि आप मुझसे करवाएं, बिकॉज आई ऑल्सो प्रोवाइड इट, आप कहीं से भी कराएं। द थिंग इज कि आपकी एस्से राइटिंग से पहले आपकी एक इमेंस प्रैक्टिस आपकी जो है पैराग्राफ राइटिंग पर होनी चाहिए, और वो पैराग्राफ राइटिंग इटसेल्फ आपका एक छोटा ऐसे ही होता है। जब आप वो लिखना ठीक कर दोगे, तो वो लिखने के बाद आपका वो सारा कंटेंट ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा जो आप लॉन्ग ऐसे में लिखोगे। चैट जीपीटी इंग्लिश इन सिंधी फॉर ऑल, आपके नाम से मुझे आइडिया हो रहा है कि आपका कमेंट मुझे इतना परेशान नहीं किया। अच्छा, उसके बाद फियर, ऑब्वियसली आपके पास एक फियर है, आपको ये देखना है खास तौर पर कि ये 3 चीजों में आपके पास कौन सी चीज है। क्या आपको फियर है लिखने का? क्या आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो कि चलो कल लिख लेंगे, चलो परसों लिख लेंगे, ठीक है? या फिर कोई और चीज है जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है? ये तीनों चीजें आपकी आइडेंटिफाई होंगी जब आप पैराग्राफ राइटिंग करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। सो ये आज मैंने आपको एक क्लियर चीज बताई कि इंग्लिश जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एक इंग्लिश फोबिया स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, और वो एग्जिस्ट जब करता है तो वो चीज जो है आपको ओवरकम कैसे करनी है। ठीक है। You can go for any mentor for paragraph evaluation. You can contact CSS platform as well, because they have people who evaluate these things. ठीक है जी। और खास तौर पर बहुत ही मिनिमल फी में आपकी ये चीजें जब इवेल्युएट हो जाएं, तो दिस इज समथिंग जो आपके जो है बहुत उसमें जाती है। ठीक है जी। ओके। सो आई होप सो कि आपका इंग्लिश वाला पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया होगा। प्लीज आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। ठीक है। Academy selection for English. Oh my God. Academy, we never recommend wastage of time, wastage of money, everything that you can expect. ठीक है। So this was overall session. Now I just want to take your questions, कुछ queries आप लोगों के, because I have a class at 8:30. Now I have extended that time period to, you know, 9. 9 बजे उनकी क्लास होगी। वी हैव हाफ एन आवर, और हम उस हाफ एन आवर में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करती हूँ। आराम आराम से अगर आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो मेरे लिए बहुत इजी होगा, और थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस को कीजिएगा ताकि और आसानी हो मेरे लिए। इतने लंबे मैसेजेस मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है। मैं आधा पढ़ती हूँ तो वो ऊपर चला जाता है, इतने मैसेजेस एकदम आ रहे हैं। ठीक है। एस्से के लिए मटेरियल कहाँ से याद करें? देखिए, एस्से का जो आपका मटेरियल है, अगेन वो आपके करंट अफेयर से आएगा। अगेन आपने जितना
जितना पढ़ा है वो आपको उतना ही हेल्प करेगा आगे जाकर। अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो आप ऐसे उस तरह से प्रोडक्टिव वे में कर ही नहीं सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा कंटेंट आपके पास लिखने के लिए होगा, जितना नॉलेज आपके पास होगा, ठीक है। जितना नॉलेज आप ले सकते हो उसको लो, और अपना एक आप सेपरेट नोटबुक बनाओ जिसमें आपने सारी डिवीजन की हो कि मैंने कौन से थीम्स जो हैं वो प्रिपेयर की हैं। जेंडर पे आपका अलग होना चाहिए एक रजिस्टर, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप चीजों को लेकर चलो। ठीक हो गया जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, डोंट गो फॉर अकेडमीज। आई अगेन सेड कि आपने 1 लाख 2 लाख रुपए जो वेस्ट करने हैं, बिलीव यू मी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस इवन, वो आप आराम से अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करें, और इसके अलावा ऑनलाइन सोर्सेज के ऊपर रिलाय करें, ठीक है। जिसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनी प्लेटफॉर्म, चूंकि मैं सिंस मैं इस प्लेटफॉर्म पर काम भी करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, लेकिन जो चीज आपको फ्री मटेरियल मिल रहा है, जो चीज आपको फ्री मिल रही है, जो आपको एक सेशन इतना इतना जो है रीजनेबल पैकेज आपको दे रहे हैं, आप अगर इनके पैकेजेस देखें तो यू विल सी एंड यू विल बी अमेज्ड कि भाई इतने जो है कम फी में कौन पढ़ा रहा है। आई थिंक 3,000 इज द फी फॉर जस्ट पाकिस्तान अफेयर्स होल सेशन, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतनी कम फी में आपको कहीं पर भी कोई सेशन मिलेगा, एंड इट इंक्लूड्स इवन टेस्ट एज वेल। सो आप इस चीज को समझें। हाउ टू इम्प्रूव वोकेबलरी, वोकेबलरी अगेन आप के पढ़ने से जितना आप जितनी अच्छी अंग्रेजी पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। उतना ही आपकी वोकेबलरी एनहांस होगी, एंड प्लीज इसको यूटिलाइज करना है आपको अपनी राइटिंग में। ओके, टेस्ट और इंटरव्यू फॉर, अच्छा आपका फिर मैसेज ऊपर चला गया। ओ माय गॉड, इतनी स्पीड में आ रहे हैं मैसेजेस मुझसे। एक सेकेंड प्लीज वेट कीजिएगा। रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी कहाँ से प्रिपेयर करें, आई मस्ट से कि इसके लिए भी आप इन्हीं से रिकमेंडेड बुक्स की जो मैं आपको लिस्ट दूंगी वो आप इनसे ले सकते हैं, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट, हाँ जब आप अपने कंपल्सरीज प्रिपेयर कर रहे हो साथ साथ आपका एमपीटी भी तैयार हो जाता है। आई नेवर रिकमेंड कि आप सेपरेट एमपीटी की तैयारी करो। ऑलवेज ऑलवेज ट्राई कि आप इसी के साथ जो है वो जाओ, ठीक है जी। अम, अच्छा, बाकी it's time to wind up. Unfortunately I wanted to say a lot, but since हमारे पास टाइम बहुत कम है, I have a class of Pakistan affairs and students are waiting, and I wanted to address all the questions, and I have tried to address as many questions as I could, but unfortunately time is very short. I am receiving still hundreds and hundreds of messages, but unfortunately I am not able to address all the questions right now. So I wish you good luck. I wish you all the best. कि आप लोग जब भी तैयारी करें, अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें, ठीक है। लेट मी जस्ट आस्क इफ आई एम अलाउड और नॉट, एंड देन आई विल बी डेफिनेटली शेयर। अम, अच्छा, एक और चीज जो जाने से पहले आई जस्ट वांट कि आप लोग बताइए कि दिस सेशन वाज ऑफ कोर्स फ्रूटफुल। ये प्लीज बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से लाइक इस सेशन को ज्वाइन किया है आपने, अपनी सिटी आप लोग अगर मुझे बता सकें तो जो है मुझे आइडिया हो जाएगा दैट कहाँ कहाँ से आप लोगों ने। वेट कीजिए कि कहाँ कहाँ से आप लोग जो है वो मुझे देख रहे हैं, ठीक है जी। वेट कीजिएगा। Okay, okay, okay. So it means that we have students from all over Pakistan. Uh,
दिस इज रियली अ प्रिविलेज। ठीक है जी, ओमान, ओ माय गॉड। ओके जी, सो आई मस्ट से कि आप लोग तैयारी जो है, अगर 26 की अटेम्प्ट में जाना चाह रहे हैं तो आपको ये जो है अभी इसको जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। बल्कि लेट है अगर मैं कहूँ तो, दैट वुड नॉट बी समथिंग अनयूजुअल। आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी जो है उसको स्टार्ट करना होगा। जितना आप लोग तैयारी को जो है करेंगे जल्दी स्टार्ट, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्गर रन। ठीक हो गया जी। नंबर आप लोगों के साथ, लेट मी जस्ट शेयर ऑफ सीएसएस प्लेटफॉर्म। मैं सीएसएस प्लेटफॉर्म वालों का नंबर आपके साथ शेयर कर देती हूँ, यू कैन सी। और हाँ, एक चीज और जो मुझे इंस्ट्रक्टेड है वो ये है कि फाउंडेशन सेशन इज अबाउट टू स्टार्ट। और दे सेड कि मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्म कर दूं। फाउंडेशन सेशन जो है वो आप लोगों का जो है वो स्टार्ट होने होने वाला है इनका। और यू कैन ज्वाइन इट। फाउंडेशन सेशन के अंदर ही आपकी जो है वो सारी बेसिक्स कवर हो जाती हैं। आई टेक दैट सेशन। और वो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम, मैं करवाती हूँ वो सेशन फ्रॉम वर्ड। वर्ड से हम फ्रेज पर आते हैं, फ्रेज से हम सेंटेंस पर आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आते हैं। देन वी टॉक अबाउट ट्रांसलेशन। देन वी टॉक अबाउट इवन पैराग्राफ राइटिंग। हम लोग टेंसेस करते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, वोकैबुलरी करते हैं। इवन मैं उसके अंदर, मेरा जो लास्ट पैरा सेशन था फाउंडेशन का, उसमें मैंने प्रेसी भी कवर करवाई थी। ठीक है जी। सो लेट मी जस्ट शेयर द नंबर। और आप इनको प्लेटफॉर्म को कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट आप लोग जो है वो, ये नंबर जी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और इसको आप लोग जो है वो, लेट मी जस्ट, ये नंबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। if you have any if you want to have any information related to the कोर्स और जो भी सेशंस आ रहे हैं वट एवर, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच खुर्शीद फॉर सच एन अप्रिसिएशन। और ये दिस मीन्स टू मी अ लॉट एक्चुअली। मैं बहुत बिजी होती हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, बट मेरे ऊपर ये एक बहुत बर्डन था। आई हैड टू अरेंज इट। मुझे बहुत बहुत रिक्वेस्ट थी इसकी, तो आई थॉट कि मैं एक दिन टाइम निकालूं और आप लोगों के साथ जो है वो इसको शेयर कर सकूं। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है जी। फ्री सीएसएस ग्रुप में ऐड करते हैं। हाँ, आप लोग, ये ग्रुप बना हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। लिंक, विच लिंक यू आर टॉकिंग अबाउट? ओके, एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स, वेट कीजिएगा प्लीज। ओके सो अच्छा, एक और चीज, आप लोग अगर लिंक लेना चाह रहे हैं फॉर माय पेज, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ, वेट कीजिएगा। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर लेती हूँ। आप लोग इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट अगर चाह रहे हैं, और ऐसे किस तरीके से वैल्यूएट होते हैं, पैराफ्रेजिंग किस तरीके से वैल्यूएट होती है, वो लेना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स के एसेज और वोकैबुलरी रिलेटेड कंटेंट भी पोस्ट करती हूँ। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं, वेट कीजिएगा। हाँ, तो वो मैं आपको बता देती हूँ जी। इंग्लिश विद कशफ मलिक के नाम से ये पेज है, फेसबुक पर है। और
जो है मैं ये पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर लिंक। आप लोग अभी अपना कमेंट्स थोड़े से ना कीजिए, सब लोगों को ज्वाइन करने दीजिए, ताकि आप लोग ज्वाइन कर लें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जी शेयर कर देती होती हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट भी मिल जाएगा, जो एसएस प्रीवियस इवैल्यूएट हुए हुए हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये चीज जो है कश्यप इनसाइट के नाम से जी है, यूट्यूब भी आप देख सकते हैं। आई एम वियरिंग पिंक शलवार कमीज, एंड जो है आई एम रीडिंग बुक, दैट इज द प्रोफाइल। ठीक है जी। और इंग्लिश विद कशफ मलिक का ही ये जो पेज है फेसबुक का, इसी पर ही आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन दैट। ठीक हो गया जी। ओके, लिंक इज नॉट वर्किंग, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? रेड और ब्लैक कलर के लोगो के साथ के लिखा हुआ है, सो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा खुद ब खुद ही, इफ यू वांट टू ज्वाइन इट। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके जी। और आई थिंक कि आप लोगों के लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल रहा होगा, चूंकि इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा टाइम दरकार होता है। जो है अपना इसके ऊपर बात करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगेन टाइम जो है वो चूंकि कम होता है। यस, दिस इज द पेज जो किसी ने पिक्चर शेयर की है, कश्यप्स इनसाइट के नाम से है। मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस पहले बनाती थी, बट फिर मेरा स्टॉप हो गया, एंड देन डेफिनेटली हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इंग्लिश के साथ ऑप्शनल प्रिपेयर करेंगे, जस्ट कंपलसरी ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी कंपलसरीज। ठीक है, ठीक है जी, कंपलसरीज प्रिपेयर करें जस्ट। ठीक है जी। प्लीज गाइड दैट। ये मुझे अब इसके ऊपर एक सेपरेट डिबेट है, तो आमना इसके ऊपर अभी अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो सकती, बिकॉज इंटरव्यू इज समथिंग एल्स, टेस्ट इज समथिंग एल्स। ठीक है जी। uh, उस पेज पर अवेलेबल है ऑलरेडी। ओके जी, सो इट्स टाइम टू वाइंड अप, एंड आई होप सो दैट आपको ये सेशन जो है बहुत फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। तो आप लोगों को जो है अब फर्दर जो भी सेशंस हैं, जो भी वो है, उसके लिए आप लोगों को वो मुझे बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि मुझे वेट कीजिएगा प्लीज। आई थिंक वी शुड वाइंड इट अप। ओके जी, आई हैव अ क्लास, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट प्रोसीड। ये मैंने नंबर शेयर कर दिया आपके साथ, ठीक है। ये वाला, ये दिस वन, ये जिस पे मैंने हार्ड ना है, ठीक है, दैट इज पर्सनल वन। ठीक है, पैराग्राफ इवैल्यूएशंस वगैरह के लिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। इट वॉज रियली अ वेरी प्रोडक्टिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन, and I actually got an opportunity to address such a massive crowd, and inshallah I will try कि हम इस तरह का एक आधा और सेशन रखें, ताकि आप लोग जो है इस चीज से बेनिफिट ले सको। नंबर इज एक्चुअली अवेलेबल ऑन द फेसबुक पेज, ठीक है, आप वहां से ले सकते हो। यस, उसामा हैज अगेन शेयर। ठीक है। सो दिस इज ऑल व्हाट इट इज, और इनशाला आप लोगों से फिर मुलाकात रहेगी कहीं ना कहीं पर, आप लोग जो है मिल जाओगे। एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, इट इज बेसिकली समथिंग दैट आई कैन आस्क यू फॉर। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और तैयारी जो है उसको जल्द अज जल्द शुरू कर दें। अल्लाह हाफिज।